Yes. This is my first feature film that I've directed, and I'm really excited. It's a great honor that it's the opening film for Mami, and I mean, it's a great festival. I'm looking forward to watching other films, but it's really an honor, and it's also very nerve-wracking that it's our first screening ever in India, first public screening in India. बाहर जो भीड़ देख रहे हैं लोग इस तरह का फिल्म फेस्टिवल में आपकी पहली डायरेक्टोरियल वेंचर मेरे ख्याल से इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स किसी तरह का प्रेशर या एक्साइटमेंट क्या कुछ है अब तो मतलब क्या प्रेशर, अब तो फिल्म बना ही लिया है. Now there's nothing I can do. I'm just so happy that so many people have come to, I mean, I hope many people have come to watch it, and most importantly, I hope that they like it or they can relate to it in some way. हमने बाहर लोगों से बात की तो लोग यही कह रहे हैं कि अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं वो ट्रेलर देख के कि ये फिल्म आखिर किस बारे में है. तो आप इस सीक्रेसी हमेशा से बरकरार रखना चाह रही हैं. I mean, I think there's no fun if I tell you the ending. You know, it's like a human drama film. There's an element of obviously some suspense. As the title suggests, it's a death in the gunge. Somebody's gonna die. So it wouldn't be fair if I told you who or how or why. It's a, you know, it has its ups and downs. I mean, there are things, it's very liberating being behind the camera also. You know, you get to exercise a lot more control, you have many more choices. It's also more terrifying, there's more responsibility. So I think there are pros and cons to both. I've acted in more than 40 films, I've directed one. It's not a very fair question. मतलब दोनों में कुछ मतलब डिफिकल्टीज भी है एंड देयर आर थिंग्स अबाउट इट व्हिच आर एंजॉयबल, देयर आर थिंग्स अबाउट इट व्हिच आर चैलेंजिंग. बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सही है सर. Call him. Abhishek. Sir, please come now. Abhishek is Hani and Abhishek, first maiden venture production. How does it feel like today? It's great. Absolutely great. Any nervousness regarding the premiere that the film is now finally coming out after touring various festivals? Well, exactly. This is not the first screening of the film, so we're very proud that this is the India premiere sort of at Mami. But we have some idea of what the audiences have been, how the audiences have been reacting, and keeping my fingers crossed that they enjoy it here as well. So we are excited about the film. More than the nervousness, we are excited. जी बहुत ही स्पेशल है. मतलब हमारी पहली फिल्म का आज मुंबई में प्रीमियर हो रहा है, तो मतलब क्या कहें इससे स्पेशल क्या है. And वो भी मामी फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म है. It's already is very prestigious, to have to stand on this platform. Abhishek, as a director yourself, what do you have to say about Konkana's direction of the film? No, I think it's a very well made film. I think it's a story that Konkana really felt for. It's something very deeply rooted, in a family and all of that.
So it's a world that she knows very well, and it was really amazing to see her work because she's an equally accomplished director. Yeah. जी ये लास्ट बना जी लास्ट बना रोल करें ठीक है स्टार्ट नेहा कोंकणा की पहली फिल्म हर किसी के लिए अब उसकी पहली फिल्म बहुत स्पेशल होती है आप कितनी एक्साइटेड और बाहर जो भीड़ देख रही हैं आप क्या लगता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का इंसान अगर अपनी पहली फिल्म बनाए, आई थिंक बहुत ज़रूरी बात होती है टू गो आउट देयर एंड सपोर्ट इट। उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई दोस्त अपनी पहली फिल्म बनाए तो उसको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कोंकणा इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं उसकी फिल्म के लिए ना आऊँ। और जब हमें पता चला दैट इट्स द ओपनिंग फिल्म एंड मामी, वी वर वेरी वेरी प्राउड। हमने नरेशन मैंने बहुत देर पहले सुनी थी इस फिल्म की एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट कम टू लाइफ एंड दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। जिस तरह से जियो मामी फिल्म फेस्टिवल हर साल एक अलग लेवल पे जा रहा है, इस बार क्या लगता है कि इंडियन फिल्में हैं या भूटान की फिल्में हैं, अलग अलग देशों की फिल्में हैं, तो मानती है जो फिल्म फेस्टिवल कल्चर है वो अब यहाँ पे भी एक नई इंटेंसिटी के साथ नजर आ रहा है। आई थिंक कोई भी कल्चर अगर आप किसी भी इंटेंसिटी के साथ देखो तो सिर्फ उस जगह की ऑडियंस ही डिफाइन कर सकती है एंड एवरीथिंग दैट चेंजेस बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट। और आजकल मामी के लिए भी बहुत ही बड़ी और बेहतरीन ऑडियंस है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट इन एनी अदर वे। मैं भी अपना पास खरीद के लाइनों में खड़े होकर जाके फिल्म्स देखती हूँ। सो आई बीन डूइंग इट फॉर मेनी ईयर्स और आई थिंक मामी हैज़ अ ग्रेट सिलेक्शन। इट्स एक्चुअली आउट ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स यू सी वन ऑफ द टॉप 5 or 10 festivals with the best selection of films and that's what makes Mami so special. Neha, you said you heard a narration of the film long ago. Yes, sorry. Any point of time you wanted to be a part of it? Well, you know, it's one thing that you want to be a part of every good film. There's another thing whether you fit into any of the parts. I know the people she's cast for the film are absolutely right. There's Honey who's involved in the casting. There's nobody better as far as casting is concerned. She's got one of India's best casting directors to produce her film. So obviously he's done the right job. But I'm very excited to hear what she's done because I know the story and I want to see it come to life. Any plans for you to even turn a director in the future, just like Konkana did? Well, nothing right now. It's just I think it's too much, and I don't think I have the bandwidth yet. Thank you. अंगद कोंकणा की ये पहली फिल्म है एक डायरेक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए उसकी पहली फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपकी पहली फिल्म में भी धमाका किया। कोंकणा के लिए क्या विश करेंगे? जी मेरी तरफ से कोंकणा को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि एक तो बहुत ही बढ़िया कलाकार रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना फिल्म इंडस्ट्री में काम संभाला है, जैसी फिल्में उठाई हैं, उनकी कला मुझे बहुत ही आकर्षित करती है एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट आउट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं फिल्म्स की तरफ, दे आर रियली रियली गुड. So yeah, I wish her all the best. Really looking forward to this film, क्योंकि इसमें जो she's been able to even the star cast is exceptional. They are very very talented. Each individual has made a mark in the industry with their own talent. So yes, towards her, Konkana, even as far as the cast is concerned, I think this is one film to really look forward to. जियो मामी से जुड़ी हर
हर आर्टिस्ट की एक याद होती है। आप कभी एज अ फिल्म स्टूडेंट या मूवी बफ भी आते रहे होंगे, क्या कुछ आपसे जुड़ी याद है जियो मामी को लेकर? जी मेरी याद है तो इनफैक्ट जहाँ से शुरू होती हैं वो मिस्टर बच्चन से ही होती हैं। जिस तरीके से हमने अभी पिंक भी करी है, जिस तरीके से उसका प्लेटफॉर्म मिला है, वो इनफैक्ट कल आए थे। उन्होंने बहुत ही एक एक्सेप्शनल स्पीच दी है, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट रहा है। और भी काफ़ी सारी फिल्में मामी ने प्रमोट करी हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नॉट जस्ट द फिल्म्स बट जो मेकर्स हैं और ख़ास करके जो कलाकार हैं आकर यहाँ पर मिंगल करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं। बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म है हर एक आर्टिस्ट के लिए, हर एक मेकर के लिए। आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि इट हैपन्स एवरी सिंगल ईयर। अभी मिस्टर आमिर खान भी आए थे, दंगल भी प्रमोट हुई है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज अगर आप देखें इट्स जस्ट नॉट फॉर द न्यू, इट इज़ ऑल्सो फॉर द पीपल हु हैव बीन हियर फॉर गुड 20, 25, 30, 45 years as well. So yeah, it's a great platform to be on. आपके हक से क्या कुछ नजर आने वाला आने वाले वक्त में, अगर फिल्मों की बात करें? देखिए मुझे जहाँ तक लगता है जो स्टारडम है, अब जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो हीरो बन चुके हैं कहीं ना कहीं, और जो स्टारडम रहेगी वो कंटेंट के पास ही रहेगी। फिल्में एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जहाँ पर वी आर ग्रेविटेटिंग मोर टुवर्ड्स द कंटेंट। We want to see good films, we want to see also very good actors. So कहीं ना कहीं yes, stardom है अभी, लेकिन we are moving and gravitating towards actors who can deliver towards their corrective parts. तो आपके पार्ट से क्या कुछ सरप्राइजेस होने वाले हैं फिल्मों के? मेरी तरफ से जी जी। Are you asking me about the upcoming films? There is Dear Zindagi अब रिलीज पर है, Dear Zindagi. There is a project I'm doing with Excel. Karan Anshuman is directing it. It's called Power Play with Richa Chadha and Mr. Vivek Oberoi. So I think that will release in March. So मेरी तरफ से भी 2 projects हैं, आगे देखते हैं. I hope I've been given a very good platform with Pink. It's been recognized well. So I want to work with Shujit one more time. Yeah, thank you. अरे हाँ भाई सर, बाइट्स राहुल सर। सर वाइट सर अरे राहुल सर। जस्टिन सीट ना भर जाए। अरे हाँ यार, किसको? अरे राहुल वो उसको तो रुकना पड़ जाएगा। आप इधर ये पूरी भीड़ जो बाहर नजर आ रही है आपकी फिल्म के लिए, इतनी उम्मीद थी कि फिल्म फेस्टिवल सर्किट पे जब एक ऐसी फिल्म आ रही होगी कोंकणा की पहली फिल्म, तो इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा? जी, कोंकणा मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, तो अब मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है इस वक्त, क्योंकि पहली बार कास्ट और क्रू फिल्म देखने वाली है। एंड वी आर ऑल रियली एक्साइटेड एंड वी आर ऑल रियली रूटिंग फॉर यू कोको, एंड होप दिस फिल्म इज just takes all of us to places that we are happy to go to. Yeah, very exciting. आ जाओ थोड़ा सा रख नज़ला
हेलो, कैसे हो? अरे प्रशांत भाई कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड। क्या कहना चाहिए, कितना एक्साइटेड है फिल्म को देखने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक कंकना जी का डेब्यू है एज अ डायरेक्टर, तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एंड मैनी ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स जो एक्टर्स हैं और बहुत बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, उनका मैं फ़ैन हूँ। जिम हो या कल्कि हो, विक्रांत है, रणवीर शौरी जी हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड ये फिल्म देखने के लिए। एंड मैंने जब ट्रेलर देखा था, जब ट्रेलर नेट पे आया था, तब भी मुझे बहुत एक्साइटिंग फिल्म लगी थी। एंड बहुत कम फिल्में होती हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता होता, आप सीधे फिल्म देखते हो। तो हम रियली मैं उस जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कंगना की ऐसी पहली फिल्म है जो कि वो डायरेक्ट कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आई थिंक एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस तो खैर अभी वो अपने क्राफ्ट में इतनी माहिर हैं, उनका कोई भी काम हो, चाहे वो एक्टिंग हो या उनको स्टेज पे देखना, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस। एंड आई एम रियली होपिंग एंड आई एम नो फॉर श्योर दैट दिस आल्सो इज गोइंग टू बी द ट्रीट। आपकी जियो मामी से जुड़ी क्या यादें हैं? एक दौर होगा जब आप फिल्में देखने एक स्टूडेंट के तौर पे आते रहे होंगे, एक मूवी बफ के तौर पे आते हो, साल दर साल कितना बेहतर हुआ है? मेरी एक्चुअली पिछले 2 सालों से लास्ट टू लास्ट ईयर जब मामी हो रहा था तब मसान शूट हो रही थी, एंड लास्ट ईयर जब मामी हो रहा था तब रमन राघव शूट हो रही थी। बट लास्ट ईयर आई रिमेंबर रमन राघव के वक्त भी आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट, मैंने कम से कम 2-3 फिल्में तो देखी हैं हर साल। एंड दिस ईयर ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर अ कपल ऑफ फिल्म्स, डेथ इन द गंज, देन ऑटो हेड एंड ट्रैप्ड बाय विक्रमादित्य मोटवाने। मैं इन फिल्मों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू होस्ट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ मामी। चलिए, एक चीज़ और है कि भारत में फिल्म फेस्टिवल कल्चर ने एक नई पहचान बनाई। जी, जी। मानते हैं कि ये चीज़ जो है अब और ज़्यादा फिल्म मेकर्स और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हो, चाहे कंगना जैसे अपना पहला डायरेक्टर, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर मंच हो। आई फील सो वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज एक तो आई मीन जैसे कि आप यहीं रश देख सकते हैं, इतने सारे सिनेफाइल्स हैं, इतने सारे सिनेमा लवर्स हैं इस देश में, इस सिटी में। तो आई थिंक फेस्टिवल्स लाइक दीज जो एक वर्ल्ड सिनेमा को एंड मेकर्स फ्रॉम वर्ल्ड सिनेमा को आपके शहर लाती है, आप उनके साथ मास्टर क्लासेस अरेंज करती हैं, उनके साथ इंटरैक्टिव सेशंस अरेंज करती हैं, ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई इनिशिएटिव ऐसा है जो आपको ये इजाज़त देता है कि आप आएँ, उसमें पार्टिसिपेट करें और उसका एक हिस्सा बने, आई थिंक इट्स ओनली गोइंग टू प्रमोट गुड सिनेमा टू अनदर लेवल। Vicky, when do we see you next after Raman Raghavan? What next? अभी I'm going to start shooting for a film which is going to be produced by Ronnie Screwvala and it's going to be directed by Anand Tiwari. हम ये अभी अगले 2 महीनों में शूट करेंगे, तो आई थिंक मिड नेक्स्ट ईयर और सम टाइम नेक्स्ट ईयर। उसका अभी तक टाइटल इन्होंने लॉक नहीं किया है। Is it a comedy thriller or something? It's something that I've not done till now. It's a very light-hearted popcorn film जो अभी तक शायद नहीं की है। And Vicky, were you disappointed with the constant reports that you were part of Padmavati and things like that? Were you disappointed with the reports? नहीं, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं 1 साल पुराना हूँ इस इंडस्ट्री में, तो अगर किसी इतने नए लड़के के साथ बंसाली जी का नाम जुड़ता है और ये न्यूज़ भी आती है कि वो सोच रहे थे, वो मेरे लिए उतने में ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मेरे लिए फिल्म करके हिट हो जाने वाली बात है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर व्हाट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ। थैंक यू सो मच। बैठ जाओ।
Wow, these fans are heavy, huh? Yes. जैसे फिल्म और अभी हमने देखी भीड़ पूरी अंदर गई है। जी। क्या मानती हैं फिल्म फेस्टिवल सर्किट में इस तरह का रिस्पांस फिल्म को लेकर आप एक तरह का भरोसा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा? आई होप, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इतने लोग आए हैं प्रीमियर के लिए। और मैं खुद फिल्म नहीं देखी अभी तक, बहुत नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। एज एन एक्टर रही हो या फिर बाकी क्राफ्ट में भी एक रहा है कि उनका एक टच नजर आया है। फिल्म के ट्रेलर को देख के सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था या आपने क्या कहा? काफ़ी लोग, मैंने नहीं बोला लेकिन काफ़ी लोग ने बोला वेस एंडरसन फिल्म की तरह दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कोकना के लिए। और वो बहुत इंटेलिजेंट एक्टर और अभी डायरेक्टर है, एंड आई हैव फुल फेथ दैट विल बी अ गुड फिल्म। आंसर आपकी भी कुछ यादें होंगी जियो मामी से, जब एक दौर में आप स्टूडेंट के तौर पे मूवी बफ के तौर पे आती होंगी फिल्में देखने, तो पहला कनेक्शन कब बना? अरे मैं तो स्टूडेंट के टाइम पे इधर नहीं थी, मैं साउथ इंडिया में थी, लेकिन आई नो दैट या ये फेस्टिवल बहुत ही मतलब कॉमन मैन के लिए है। इट्स द वन फेस्टिवल वेयर वी गेट अ चांस कि सारी दुनिया के फिल्म्स देखने के लिए चांस मिलता है बॉम्बे में, तो बहुत यूनिक फेस्टिवल है हमारी शहर की, और मैं बहुत खुश हूँ कि इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेस एवरी ईयर। आप बराबर थिएटर्स और फिल्म दोनों तरफ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, क्या कुछ सरप्राइजेज आने वाले वक्त में हैं आपके? सरप्राइजेस तो हमेशा आने वाले हैं, इसलिए हम जिंदा हैं सरप्राइजेस के लिए। थिएटर बहुत रीइन्वेंट कर रही हैं, उस बारे में बताइए। हाँ, अभी मैंने एक प्ले किया रेहान इंजीनियर के साथ फार अवे, और रजत कपूर के साथ एक और प्ले करती हूँ मैकबेथ। इसके अलावा अगर बात करें जियो मामी फिल्म फेस्टिवल, इस बार आपको क्या 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 किन फिल्मों पे आपकी निगाहें हैं या आप देखने वाले? मुझे एक्चुअली मैंने अभी तक प्रोग्राम नहीं देखी, लेकिन मेरी जो फिल्म है ये है, और एक और फिल्म है कल मंत्रा, तो प्लीज़ वो भी देखने जाइए, कल 5 बजे है अंधेरी में मंत्रा। In Death in the Gunj, I play a character called Mimi, who is a very sexy girl and who quite the flirt in the film. Do you connect with the character? I love flirting. Sure. And how has it been working with Konkana for the first time? It's been great. I worked with her on Ek Thi Dayan as an actor. Now I'm working with her as a director. She's a very capable person, extremely, I mean, she knows her art and she knows her visuals really well. I haven't seen the film, so I'm very excited to see what she's done. So what are you expecting from the film now? I'm expecting a beautiful artistic film. I am expecting something which is probably going to make me cry. Why do you want people to watch this film? Death in the Gunj is, I mean, we haven't had this kind of drama film on a 1970s true story. I think it's a very unique story. It's told in a very fairy tale-ish way, and I think people will enjoy. Thank you. No, yeah, it's too much work. Okay, my turn. Hi, hello. Hi, good evening. Sorry I'm late. It's the wife I'm delayed. She took, but she's looking stunning today, so I forgive her. Yeah, I know, but she's looking stunning, so it's worth it. Yeah. Let's go. अरे बहुत एक्साइटेड हूँ यार। आई थिंक हमने 35 दिन हमने झारखंड में शूटिंग करी है और बहुत मेहनत से करी है, मतलब 5-6 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ठंड में हमने शूटिंग करी है, एंड इट्स द बेस्ट कास्ट आई एवर वर्क विद। ओम जी, तनुजा जी, रणवीर शोरी, जिम साहब, कल्की, तिलोत्तमा, विक्रांत मैसी, इट्स द बेस्ट कास्ट। इससे बढ़िया कास्ट तो आपको, मतलब ऑन पेपर एंड ऑन स्क्रीन ऑल्सो, इससे बढ़िया कास्ट तो आपको बहुत मुश्किल है मिलना। जी, मुश्किल तो एक्चुअली था उनके लिए, क्योंकि वो एक नर्वसनेस भी होती है और उनकी मदर भी काफ़ी जानी मानी सी फिल्म मेकर है, तो एक प्रेशर भी होता है कि देखते हैं, बेटी तो एक्ट्रेस तो कमाल की हैं ही, लेकिन एज अ फिल्म मेकर क्या करेंगे ये, सो वो प्रेशर तो था। बट हमने काफ़ी पहले से वर्कशॉप्स वगैरह शुरू किए थे, तो धीरे धीरे से हमने फिल्म की तरफ एक एक कदम लेते हुए आगे बढ़े। आई थिंक शी इज़ डन अ डैम गुड जॉब, और क्योंकि वो खुद भी एक्टर रह चुकी हैं, तो आई थिंक वो एक परफॉर्मेंसेस को समझती हैं, तो उस हिसाब से वो उनका डायरेक्शन भी ऐसे था।
Some places she was particular, some places she would give us a lot of freedom to do. But I think she's done a fabulous job as a director. All right. Thanks, guys. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी अच्छी एक्ट्रेस है और मतलब एक्चुअली मुझे भरोसा है उससे शायद कहीं ज़्यादा अच्छी डायरेक्टर भी साबित होंगी। अच्छी सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यू नो, सो कहना बहुत मुश्किल है एंड आई कांट रियली पिक अ फेवरेट बिकॉज दे ऑल आर फ्रेंड्स। इसके अलावा जिस तरह से जियो मामी साल दर साल एक तरह से भारत में फिल्म कल्चर, फिल्म फेस्टिवल कल्चर को आगे बढ़ा रहा है, उसके बारे में क्या आप कई वर्षों से हिस्सा रही हैं, आप इसमें शामिल होंगे? जी आई थिंक ऑफकोर्स मामी जो फेस्टिवल है वो हर साल बड़ा होता जा रहा है एंड इसका फुल क्रेडिट जो है वो अनुपमा और किरण दोनों को जाता है। दे रियली वर्क थ्रू आउट द ईयर वेरी हार्ड एंड वेरी टायरसली टू मेक दिस festival as big and as successful as possible. So, you know, a huge pat on the back to both these women and all the entire team. I think they really like, you know, sort of go out of their way to make this festival a success. और I think मुंबई क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से है, आई थिंक बहुत डिज़र्विंग सिटी है एक इस तरह की फेस्टिवल यहाँ पे हो, या इससे मैं तो उम्मीद करती हूँ बड़ी फेस्टिवल ये हर साल और बड़ी होती जाए। चलिए, आपके हक से क्या कुछ नजर आने वाले वक्त में, क्योंकि फिल्मों की ही बात हो रही है। जी मेरे क्या, सॉरी, आपके हक से क्या कुछ होने वाला है फिल्मों के लिए? आपके क्या कौन सी फिल्में आई आपके कांट हियर एनी, देयर सो मच नॉइज हियर। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट, मुझे लगा आप मुझसे, अच्छा मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट, आई हैव अ रिलीज कमिंग अप कॉल्ड जॉली LLB 2 व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, and Gurinder Chadda's film Viceroy's House. All right, thank you.